Hello, guys, and welcome to Clap Possible. I'm your mentor, Shrikant Tripathi, and guys, today we are going to discuss a very important news that happened in the recent week. Okay, so guys, in today's session, we are going to discuss something about which our Prime Minister mentioned. Okay, now we all know that Uttar Pradesh recently conducted its Global Investors Summit. Okay, and in that Global Investors Summit, Prime Minister was invited as the chief guest. So while Prime Minister was addressing to the crowd, okay, to all the audiences, a term was used by our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Now, what was that term? What exactly is the significance of this term? All these aspects will be discussed in this video. Okay, so guys, I'm Shrikant Tripathi, your mentor. Okay, so guys, before we start the video, please do subscribe to the channel if you haven't. Also, like the video, share with as many people as possible. So guys, Bimaru tag, this was the name, Bimaru tag. Now you might have heard this term Bimaru tag. So what exactly is the meaning of this Bimaru tag? Okay, what are the various concerns? Who actually coined this term? All these things will be recorded in this particular session. So guys, recently Prime Minister Modi mentioned the Bimaru tag on the inaugural day of Uttar Pradesh government's 2 days investors summit. Okay, now what is Bimaru? This term was used. It's not like it has been used for the first time. No, guys. Bimaru tag has been used in the past by many politicians, especially the term Bimaru can be seen with reference to the state of Bihar. Okay, Nitish Kumar, you might have heard him saying lot many times, okay, while asking funds from the central government, that Bihar is a Bimaru Rajya or a Bimaru state. So guys, I'm just going to discuss what exactly this term Bimaru means. What is Bimaru? The Bimaru acronym has been used to refer to Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh. Okay, the term Bimaru has been used for these particular states, that is Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh. The meaning, what exactly is the meaning? The term implied that the mentioned states lagged in terms of economic growth, healthcare and education. So guys, बीमार जो शब्द होता है बीमार, सिक, उसी से बना आपका बीमारू. अब ये बीमारू स्टेट अगर मैं किसी को कहता हूं तो व्हाट आर द कंडीशंस व्हाई वी आर कॉलिंग अ स्टेट एज बीमारू? सो वो इसलिए क्योंकि दे आर लैकिंग इन वेरियस एवेन्यूज. व्हाट आर दोज वेरियस एवेन्यूज? नंबर 1, there is no proper economic growth. Okay, no proper economic growth. Number 2, the healthcare facilities are really very bad. And number 3, the states are also not doing well in terms of education. Okay, so when a state is actually observing all of these scenarios, that means they are lacking in economic growth, they are lacking in proper healthcare facilities, and also when they are lacking in the education sector. तो ये सारी की सारी चीजें मिल करके एक स्टेट को बीमारू स्टेट की कैटेगरी में प्लेस कर देती हैं. Okay, Bimaru means sick. Now, why do we use this term? Okay, and what is the reason? How have these states become Bimaru states? Okay, Bimaru means sick. The term has often been criticized by civil society and proponents of development economics for its demeaning character. Okay, even though, like I said, Bimaru ये जो term होता है ना, ये बहुत खराब term है. Okay, और कई सारे लोग, कई सारे इकोनॉमिस्ट, कई सारे पॉलिसी मेकर्स, they actually try not to use this word. लेकिन यार अब अगर कोई चीज है, if something has been introduced in reference to a particular state or scenario, और अगर उसको उसी चीज से हम लोग कन्वे कर सकते हैं, so we have to use it accordingly. Okay, तो यहाँ पे कुछ सही गलत वाली बात नहीं हो रही है.
Who coined the term? This term was first coined by Ashish Bose, a prominent demographer. Okay, now who is a demographer? जो population या population changes को पढ़ता है ना. Okay, the person who studies about population and population changes. Population and population changes के बारे में जो बंदा पढ़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Demographer. Right? So Ashish Bose coined this term in a paper presented to then Prime Minister Rajiv Gandhi in 1985. So we know the history of this word. When exactly was it coined? So it was coined in the year 1985. By whom? By Ashish Bose. When the term was coined, the states of Jharkhand, Chhattisgarh and Uttarakhand were not separate states and were part of the groupings. आप सोचो 1985 when this term was used for the first time. In fact, आपका उत्तराखंड हो गया, आपका तेलंगाना हो गया, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, आपका झारखंड हो गया, ये स्टेट्स तब बने भी नहीं थे. ये जो 3 स्टेट्स यहाँ पे नाम देकर के रखे हुए हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उत्तराखंड, ये बने हैं सन 2000 में. ओके, इन 2000. वेयर एज तेलंगाना हम लोगों का सबसे रीसेंट स्टेट जो है वो बना है आपका 2014 में. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूनियन टेरिटरीज. ओके, लद्दाख और जम्मू कश्मीर की मैं बात नहीं कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेट्स. Fine. Features. What are the prominent features of a Bimaru Rajya or a Bimaru state? Low industrial and sophisticated services sector share in gross state domestic product. यानी कि industrialization is almost industrialization is either very less or missing. ठीक है, या तो बहुत कम होता है या तो होता ही नहीं है जीएसडीपी में, यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जीडीपी जो टर्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं दैट इज फॉर द एंटायर कंट्री, बट जीएसडीपी व्हेन आई एम यूजिंग दिस टर्म, सो दिस पर्टिकुलर टर्म इज यूज्ड विद रेफरेंस टू द जीडीपी ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट. हाई एग्रेरियन शेयर इन जीएसडीपी. अब यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, लोग कुछ तो काम कर रहे होंगे, तो स्टेट की जो इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा रिलाई करती है किस चीज के ऊपर? द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट रिलाइज अपॉन एग्रीकल्चर. अब एग्रीकल्चर देखो यार, हमको एक चीज पता है, क्लोज टू 51% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इवन टुडे is involved in an activity, is involved in a profession of agriculture. But the problem is, what is the contribution of agriculture sector? Contribution of agriculture sector in the GDP of the country is ranging barely between 15 to 16%. 50-51% लोग, 50-51% people in the country are doing one particular job. तो यहां से सबसे ज्यादा contribution भी तो होना चाहिए, but agriculture से जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में दैट इज वेरी लेस. ओके, तो ऑब्वियसली आपका जो पूरा का पूरा जो टैलेंट पूल है वो कंट्रीब्यूशन के नाम पर कुछ भी नहीं कर रहा है. हाई टोटल फर्टिलिटी रेट रिजल्टिंग इन हायर पॉपुलेशन ग्रोथ. ओके, विद रेस्ट ऑफ इंडिया, विद कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, अब यहां पर आप एक चीज समझिए, हाई टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि आबादी यहां पर बहुत ज्यादा होती है. टोटल फर्टिलिटी रेट अगर हम लोग बात करते हैं दैट मींस टेक्निकली बाकी भारत के रिस्पेक्ट में पर वुमेन, ओके, हर एक महिला कितने अपने लाइफ टाइम में कितने बच्चों को जन्म देती है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है यहां पर. अब यार ऑब्वियसली बात है ना, आबादी पॉपुलेशन कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है. रिसोर्सेज ठीक है, रिसोर्सेज दो तरीके के होते हैं. एक होता है स्किल्ड रिसोर्स, उसने पढ़ाई करी है, उसने कुछ लिखा है, उसको समझ में आ रहा है, डन इंजीनियरिंग, डन एमबीबीएस, डन आर्किटेक्चर, ये हो गया स्किल्ड रिसोर्स. इनको नौकरी मिलना बहुत मुश्किल नहीं होगा, दे विल डेफिनेटली फाइंड अ वे फॉर देमसेल्फ. जो दूसरा होता है आबादी ही है, दिस वुड बी कॉल्ड एज अ रिसोर्स, बट वो कंट्रीब्यूशन क्या करेगा? अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ रिक्शा पुलर,
या वो हो सकता है मजदूरी का काम करे, ठीक है, आई एम सेइंग कोई गलत बात नहीं है, मजदूरी कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको नहीं लगता कि मतलब हम लोगों को बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवानी चाहिए ऐसे लोगों को? व्हेन सच पीपल हैव बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, कहीं ना कहीं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, राइट? तो यहां पर क्या होता है, यहां पर द प्रॉब्लम इज व्हाट, द प्रॉब्लम इज टीएफआर रेट हाई होने के कारण यहां पर आबादी बहुत ज्यादा होती है, और जब आबादी बहुत ज्यादा होती है तो जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो सबको तो कवर नहीं कर पाएंगी, ओके? Erstwhile Bimaru states, which accounted for 41% of India's total population in 2001, will account for 43.5% in 2026. पहले ये जो पॉपुलेशन काउंट था बेटा, दिस वाज 41%। कब? जब हमारे पास 2001 में सेंसस रिपोर्ट आई थी। अब 43.5% हो जाएगा बाय 2026। इन 4 स्टेट्स की जो पॉपुलेशन होगी बेटा, वो मिला करके लगभग 43.5% बनने की बढ़ ही रही है, आबादी घट नहीं रही है, ओके? नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है लैक्स लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। अब आप एक बात बताओ, कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, कहां से आएगा इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट आने के लिए क्यों बिहार इतना डेवलप्ड है? जंगल राज हम लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं, वी आर यूजिंग अ टर्म जंगल राज। किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? कानून व्यवस्था ही नहीं है। कोई इन्वेस्टर अगर आकर के वो बोलता है मैं 100 करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट करूंगा, है, सुबह उसने अनाउंसमेंट करी, शाम में 4 लोग पहुंच गए उसके घर में और बोल रहे हैं कि हमको पैसा दो नहीं तो तुमको मार देंगे। क्यों आएगा कोई? Why would anyone will come? Why would anyone risk their life? उसने बोला भाई कमाना ही है, मैं किसी और स्टेट में इन्वेस्ट करूंगा जो मेरे को बेटर लॉ अपॉर्चुनिटीज, लॉ एंड ऑर्डर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकता है। सिंपल, ठीक है? लो स्किल्ड लेबर पूल, मैंने आपको बताया यहां पर स्किल सेट ना के बराबर है। स्किल सेट बेटा देखो, सिर्फ बोझा उठाना इज नॉट अ स्किल, मजबूरी होती है बोझा उठाना, ओके? स्किल सेट होता है आप पढ़ाई करें, और वो स्किल सेट कब बनेगा? जब आप अपने पॉपुलेशन को पढ़ाई करवाएंगे, ओके? बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराएंगे। द पर्सन डज नॉट हैज टू वरी अबाउट सुबह तो खा लिया अब रात को क्या खाऊंगा। ये जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन अगेन सरकार भी सबको सर्व नहीं कर सकती। यहां पर आबादी का कम होना एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। नॉट अट्रैक्टिव टू इन्वेस्टर्स। अब आप एक बात बताओ, इन्वेस्टर्स क्या चीज देख करके आता है? इन्वेस्टर बोलता है कि ठीक है भाई जमीन, हाँ जमीन मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। नंबर 2, मैं जमीन पे लेकर के आया, मान लो किसी ने आकर के कब्जा कर लिया, या जो मैं अपने इंप्लॉइज को लगाऊंगा जब वो 4 पैसे कमाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि वो ऑफिस से कहा बाहर निकले और किसी ने उनको लूट लिया, नहीं। तो यहां पर अपने आप ही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का इंपॉर्टेंट होना जरूरी है। दूसरी चीज, बिफोर हायरिंग समवन मेरे को देखना पड़ेगा ना कि टैलेंट पूल कैसा है। अब टैलेंट यहां पे है ही नहीं, टैलेंट पूल के नाम पर कुछ है ही नहीं लोगों के पास, तो मैं हायर किसको करूं? अपने आप में बहुत बड़ी सिचुएशन बन जाती है, ओके? तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है यहां पर देखने समझने के लिए, ठीक है? नाउ इश्यूज रेज्ड बाय द सदर्न स्टेट्स। अब यहां पर आप एक चीज समझो ये बीमारू स्टेट्स, यानी कि एक बात आप समझो, इंडिया एज अ कंट्री कलेक्टिवली चल रहा है, लेकिन कई स्टेट्स का कहना यह होता है कि यार हमारा कंट्रीब्यूशन ज्यादा है और जो हम लोग टैक्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं दैट टैक्स इज बीइंग यूज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू पे सब्सिडीज टू दीज बीमारू स्टेट्स। जब मेहनत हम लोग कर रहे हैं, हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं, तो बेनिफिट किसी और राज्य के आदमी को क्यों मिले, हमारे लोगों को क्यों ना मिले? तो इसी के बारे में बात होती है। The share of Bimaru states in the absolute increase in India's population during 2001 to 2026 will be of the order of 50%, while the share of the South will only be 12.6%. अब ये जो सिर्फ बीमारू स्टेट्स हैं बेटा, इनकी आबादी लगभग 43-44% हो जाएगी 4 स्टेट्स की। साउथ इंडिया के चारों स्टेट्स मिला करके सिर्फ कंट्रीब्यूट करते हैं 12.6% पे। Population in Indian states also dictates the delimitation process or the number of seats allotted to them in parliament. Okay, ये तो है ही obviously बात भाई, delimitation commission तो आने ही वाला 2026 में लागू हो जाएगा हमारे पास, तो वहां पर और ज्यादा आबादी के हिसाब से और ज्यादा यहाँ पर हमारे पास MP, MLA ये सब के सब बनेंगे, इनकी सैलरीज कहां से आएंगी? तो साउथ इंडियन स्टेट्स का कहना यार ये है लगातार कि भाई जब कंट्रीब्यूशन हमारा, क्योंकि हम जानते हैं आपका बैंगलोर IT,
आपका चेन्नई मैन्युफैक्चरिंग। अगर हम लोग आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, अगेन आईटी में दे आर एक्सेलिंग। केरला वो हर चीज में ही टॉप नॉच है। फॉरेन रेमिटेंसेस की बात करें तो सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस भेजने वाले स्टेट्स में से एक स्टेट है आपका केरला, राइट। तो साउथ इंडियन स्टेट्स जो है वो उनका कंसर्न इसी चीज को लेकर के है कि दिस इज आवर मनी विच इज अर्न्ड बाय अस बट द गवर्नमेंट इज यूजिंग इन प्रोवाइडिंग सब्सिडीज। और वो लोग बोल रहे हैं कि पिछले 70 साल से लगातार इनको सब्सिडीज दे रहे हो। आउटकम कुछ नहीं, घपले, करप्शन, चोरी, यही सब चीजें। Currently, the states are proportional to the Indian population as of 1971 census. मैंने आपको ऑलरेडी बताया डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में ही, ठीक है। It was frozen until 2001, okay, to give states time to meet family planning goals. पहले बोला गया था लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं यार। We are at 142 crores. एक वीडियो मैंने इस पे भी बनाया था, we have surpassed China. Time and again, southern states have stressed that the division of seats and devolution of funds to states on the basis of population is unfair to them. वो कह रहे हैं, सिंपल सी बात है ना, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। द मोर आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग द मोर फैसिलिटीज आई शुड गेट, या हमारा से ज्यादा होना चाहिए, या हमारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होना चाहिए। जस्ट बिकॉज उत्तर प्रदेश की आबादी ज्यादा है तो आपने 80 सीट्स दे दी, जस्ट बिकॉज तमिलनाडु की आबादी कम है तो आपने उसको लोकसभा में सिर्फ 39 सीट्स दी, जबकि तमिलनाडु इज कंट्रीब्यूटिंग वे मच वे मोर देन व्हाट उत्तर प्रदेश इज कंट्रीब्यूटिंग। ये उनका सवाल है, ठीक है। Despite successfully implementing the family planning program proposed by the union government, the southern states stand to suffer and get penalized. तो हम लोग देख रहे हैं यार, अभी तक बिहार वगैरह हो गए, ये सारे के सारे स्टेट्स डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं, वही सेम वोट बैंक पॉलिटिक्स, वही सेम कास्ट बेस्ड इश्यूज, वही सेम रिलीजन बेस्ड इश्यूज। तो लोगों का ध्यान ही नहीं जा रहा काम धंधे पे, स्किल डेवलपमेंट में, उसका इसी में ही सब में मजा लगा हुआ, मन लगा हुआ एकदम। सो व्हेन ऑल दीज थिंग्स हैपन ना, तो अल्टीमेटली जो बंदा कंट्रीब्यूट कर रहा है अल्टीमेटली सफर तो उसी को होना है। एंड इंडिया में बेटा थिंग्स हैपन, पॉलिसीज आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स, ओके। सो गाइस, आई होप आप लोगों को ये जो बीमारू राज्यों का जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में एक आइडिया लगा होगा कि व्हाट एग्जैक्टली दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बीमारू स्टेट्स इज, ओके। व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस, व्हाट आर द वेरियस रीजन हाउ अ स्टेट इज एक्चुअली डिक्लेयर्ड एज अ बीमारू राज्य, right? So guys, please do like the video, share it with as many people as possible. Also guys, Clap Possible has come up, it's with GK Perfect monthly magazine. Now this magazine has been designed in such a way that the entire events of the month are actually covered in that magazine. This magazine is available at all our centers, so kindly please visit our centers to get these magazines from our center managers, okay? Please. So guys, this is Shrikant Tripathi signing off. We'll see you in the next video. Till then, bye-bye. Take care. Thank you very much.